کہ جن کا گھر جلا ہوا ہے اب وہ کہاں جائیں گے. اب یہ لوگ کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں. اب یہ لوگ بے یار و مددگار ہیں، ان کی مدد کریں. اس گھر کا تقریباً 10-20 لاکھ نقصان ہوا ہے. مکان جل گیا ہے، پوری جائیداد سب چیز ختم. سب گھر والے بھاگے ہیں باہر. سارے کا سارا سامان جل کے راکھ. دیودار کا درخت ہے اور اس دیودار کے درخت اوپر دو. السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ مجھے دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے. آپ میرا یوٹیوب چینل شبو دیکھ رہے ہیں. تو بھائی صاحب آج کا برانڈ نیو ولاگ کرتے ہیں یہاں سے شروع. بھائی صاحب کیمرہ کس نے پکڑا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اعزاز ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگ آپ کو ابھی بھی یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اعزاز کو ہم ابھی تک نہیں بھولے. اعزاز کی اسپیشلی وہ مرغے والی آواز، وہ مرغے والی آواز بھی آپ نے سنانی ہے. ہمارے ساتھ شعیب مغل بھی ہے، میرا یار اور میرا پرا اور یار. 3 لیجنڈ ان 1 فریم. بھائی صاحب یہ میرا یار ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. بھائی صاحب ابھی یہ بھی میرے ساتھ ہوگا، یہ بھی میرے ساتھ ہوگا. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے. تقریباً 4-5 دن سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں شبو بھائی کو ملوں گا، لیکن مجھے کام کی وجہ سے میں تھوڑا مصروف تھا. اچھا، اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا تو میں آپ کا ویلکم ضرور کرتا اور شاندار قسم کا ویلکم کرتا. اور آج میں نے پروگرام تقریباً 4 بجے کا رکھا ہے آپ کا ویلکم کرنے کا، اور جتنا مجھ سے ہو سکے میں ویلکم کروں گا. نہیں بہت شکریہ، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں جی. بہت شکریہ، آپ نے یہ کہہ دیا ہمارے لیے، یہ بہت. آج کا ولاگ کرتے ہیں یہاں سے شروع. بھائی صاحب صبح کا ٹائم ہے، تقریباً صبح کا کہاں بلکہ 2 بجے کا ٹائم ہے. میں ابھی نیند سے اٹھا ہوں اور اعزاز کو میں نے ساتھ پکڑا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب ولاگ بنانے کہیں نکلتے ہیں. بہرحال اب یہاں سے نکلتے ہیں. اب یہ ہے گاؤں کی خوبصورتی. یہاں سے ہم جائیں گے اس پار. بسم اللہ. آہستہ 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 ٹوٹ جائے گی. آہستہ. بھائی صاحب بھائی ابھی جہاں جا رہے ہیں نا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے بھائی صاحب جو پرانے سبسکرائبر تھے وہ ان کی اسپیشلی یہی ریکویسٹ تھی کہ اعزاز کی مرغے کی آواز سننی ہے. بھائی صاحب وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. اعزاز نکالے گا مرغے کی آواز، آپ نے اسپیشلی سننا ہے اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے. اعزاز لیٹس گو. بھائی یار ایک اور بھائی صاحب شعیب کی فرمائش پہ. یہ نہیں مزے کی نہیں نکلی، یہ سیریس. ہاں یہ کچھ قدر ٹھیک ہے. بہرحال بھائی صاحب یہ چیک کریں، یہ ہے دریائے نیلم. بالکل اتنا سا دریائے نیلم ہے. ایک وقت ہوتا ہے یہاں سے دریائے نیلم گزرتا ہے، یہاں سے بھائی اتنی اس کی وہ ہوتی ہے گہرائی، یہاں تک وہ آیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ بہاؤ ہوتا ہے اس کا. ابھی دیکھیں اتنا سا دریائے نیلم ہے. بہرحال ابھی ہم نے جہاں پہ جانا ہے وہ سامنے ادھر جانا ہے. جہاں پہ ہم نے جانا ہے بھائی صاحب وہاں پہ ایک بندہ گیا ہوا ہے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کدھر تھے آپ؟ وہ میں ادھر گیا تھا، وہ مکان جل گیا. اوہو مکان چلا ہوا ہے. اچھا گائز میں آپ کو بتا دوں میں بھی ادھر ہی جا رہا تھا، تو راستے میں یہ ملے. مجھے پتا تھا یہ ادھر ہی گئے ہوں گے، کیونکہ گاؤں میں ہمارے یہ ہوتا ہے کوئی بھی نقصان ہو کسی جگہ پہ بھی ہو، ہمارے جو بزرگ ہیں ہم سے جو بڑے ہیں وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو یہ وہاں پہ پہنچے تھے، ان سے پوچھتے ہیں. پھر ہم خود بھی ادھر جا رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہاں پہ کتنا ایک نقصان ہوا ہے. بس مکان سارا جل گیا، یہ اللہ کی طرف سے تھا نقصان. اب ہماری یہ دعا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کچھ امداد ہو. ہاں ایسا تو ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. بالکل. آپ جو میڈیا والے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جی، تو آپ یہ فوٹو ہی بنانا چاہتے ہیں کہ اور کسی غریب کا آپ انٹرویو دیتے ہیں؟ نہیں انٹرویو آپ اتنی میرے لیے اتنی دعا کریں کہ حکومت کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ پاک مجھے اتنی دے، مجھے کیا سب کو دے کہ جس کے پاس کچھ ہو وہ ان کی امداد کر دے. وہ الگ ہے، وہ الگ بات ہے. ہم تو کریں گے ایک دکا، ہم ایک آنکھ سے بھی روئیں گے اگر ایک آنکھ نہ ہو نا. لیکن آپ لوگوں پہ، گورنمنٹ پہ، سلطان میر کو بڑا افسوس ہے. جب بھی کوئی نقصان ہو آپ اس میں یہ
पेश पेश हमदर्द नहीं रहते। क्यों नहीं? अभी देखिए, अभी मैंने जूते भी नहीं पहने, इसी तरह मैं उधर जा रहा नहीं हूँ। नहीं, आप तो जाते हैं जी। और बाकी मीडिया वाले हुकूमत की बात। अभी हम जाएंगे, क्या पता हुकूमत को कोई आपने बंदा। कहा क्या पता हुकूमत करे न करे, हम खुद करेंगे, वो हम खुद भी जानते हैं ना। सेवलीन आप उसमें कुछ वो न तो कुछ- है। वो रोटियां एक दूसरे को भेजेंगे, कुछ न कुछ मदद करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मामला ये है, अच्छा, आपका इस गवर्नमेंट को पूरी भरपूर तरीके से एहतजाज और रिपोर्ट दें कि जिस तरह पाकिस्तान में मकानों के मुआवजे होते हैं, या पाकिस्तान का शेड्यूल है कि पाकिस्तान में अगर कोई शहीद होता है, मर जाता है, हादसाती मौत होती है, उनको 10-12 लाख मिलते हैं, यहाँ 50,000 या बिल्कुल 2 ऐसा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा बाकी है। भी आप कश्मीर के करें। लोगों को कम मिलता है, ये बात तो है। जबकि कश्मीर से जंगलात, हर जड़ी बूटी, मादनियात, पानी, बिजली कश्मीर से जाती है, फिर भी वो कहते हैं नहीं जी इनको कम रखेंगे मुआवजे में भी। बिल्कुल, हर ये तो है, मुसीबत कश्मीर में। के लोगों को कम मुआवजा ये दिया मेरा जाता आपको है। कहना है कि पुरजोर अपील करें पाकिस्तान इंशाल्लाह से और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से। इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं, उस गाड़ी का कितने का नुकसान हुआ है? उस घर का तकरीबन 10-20 लाख नुकसान हुआ है, मकान ओहो। जल गया है, पूरी जायदाद सब चीज खत्म। ओ हो। और क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। भाई साहब कह रहे हैं कि 20 लाख का नुकसान हुआ है उस घर में। अब चलते हैं उस घर में, देखते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, मकान पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जितनी भी कुछ होता है मकान में ही होता है, वो आपको पहले ही पता होता है। मतलब 20-30 साल में जो इंसान जमा करता है, उसमें बर्तन, जो कुछ बिस्तर, कम्बल शमल वगैरह जो भी होता है वो जल जाता है। अभी हमारे चलते खुद हैं। जले, मुझे पता है। हाँ। हमारे मकान पहले जले थे ना गोलाबारी से। एक बात मैं आपको बता दूं, जब इंडियन गोलाबारी हुई थी, शेब का घर, शेब के चाचा लोग, जितने भी तकरीबन 6 घर इन लोगों के जले हुए थे, पूरा एक मोहल्ला तबाह और बर्बाद हो गया था। वो दिन मुझे याद आ रहा है, अल्लाह पाक माफ़ी दे, उस दिन जब हमारे यहाँ बहुत शदीद किस्म की गोलाबारी होती थी पहले। तकरीबन ये 2-3 साल हो गए नहीं होती। बहरहाल अभी हम जिस घर में जा रहे हैं भाई साहब, जो घर जला हुआ है, तो उधर जाएंगे, देखेंगे कितना नुकसान हुआ, बाकी 20 लाख का नुकसान हुआ या नहीं। शबू भाई, ये शेर आपके लिए और आपको जो लोग देखते हैं उनके लिए। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर। वाह 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 वाह, एजाज तेरे क्या कहने हैं भाई साहब। जाएं उधर पहले, उधर जहाँ पे घर जला है। जाते हैं। तो हमारी शेर और शायरी बाद में सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले उधर जाते हैं घर जहाँ पे घर जला है, उनका पता करते हैं उन लोगों का। अब रास्ते को हम जा रहे थे, एजाज ने एक मुनफरिद चीज़ दिखाई। क्या है जी वो? क्या है? पाकिस्तान और नहीं, दोनों कश्मीर के झंडे। किधर है भाई साहब? ये चेक करें, लुक एट दिस। दरियाए नीलम के बिल्कुल सेंटर में इस जजीरे में एक देवदार का दरख्त है, और इस देवदार के दरख्त ऊपर 2 झंडे लहरा रहे हैं भाई साहब, दोनों कश्मीर के। ये कोई करतूती बंदा गया है इस दरख्त के ऊपर, कितना उसने खतरा वो मोल लिया है, और इस दरख्त के ऊपर गया हुआ है। वहाँ पे कश्मीर के 2 झंडे गाड़े हैं दरख्त के ऊपर। काफ़ी अच्छा प्यारा मंजर है मेरे बैकग्राउंड में। और उस घर के करीब ही हम पहुँचने वाले हैं। अब जहाँ पे वो घर जला था उस जगह पे मैं एग्जैक्ट पहुँच चुका हूँ। लुक एट दिस भाई साहब, वो घर ये है। अभी तो आपको ये छोटा सा नज़र आ रहा होगा भाई साहब, ये छोटा मकान ही था, बल्कि 3 मंजिला इतना बड़ा मकान था। अभी हम चलते हैं अंदर से भी आपको दिखाते हैं। सामान भी, मैंने सुनने में ये आया, सामान भी सारा जल के राख हो गया। अब अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाते हैं। भाई साहब अभी भी धुआं उठ रहा है, ये चक्कर है, बल्कि इन्होंने यहाँ पे आग जलाई है। मैंने सोचा अभी भी जल रहा है मकान, लेकिन जो जलना था भाई साहब वो तो जल के राख हो ही गया है। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये आपका घर था? अच्छा, इसका नहीं है। बहरहाल ओहो हो भाई साहब, ये चेक करें, जल के राख हो गया भाई साहब। अफसोस। एजाज ये है वो, क्या कहते हो? हाँ भाई साहब, ये 3 मंजिला मकान था, सुनने में ऐसा ही आया है। यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे इसलिए आग जलाई है इन लोगों ने क्योंकि यहाँ पे भाई साहब सर्दी है, जो लोग देखने के लिए आते हैं ताकि वो यहाँ पे गर्म हो जाए, इस वजह से आग जलाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये कितना मंजिला मकान था जी, कोई पता है आपको? 3 मंजिला मकान। ओहो, ये मुझे आप ये बताएं, इसमें सामान भी था? जी जी, अभी भी बहुत सारा सामान ये पड़ा है। अभी आप ओहो, बिल्कुल, ये चेक करें, देखें, अभी वो पड़ा है सारा सामान। मतलब कुछ निकाला है घर से या नहीं?
नहीं नहीं, मैं तो खुद भी अभी आया हूँ, लेकिन जो सुनने में आया है कि अच्छा। कह रहे हैं कि इधर से मतलब कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं निकाली, ओ भाई साहब ये जितनी चेक भी करें। चीज़ें थी सब जल कर राख हो गई। ओह भाई साहब अंदर भी चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाते हैं। भाई साहब ये चेक करें, सारा मकान जल के राख हो गया है। जितने बर्तन जितना सामान था सब कुछ जल चुका है, क्योंकि ये निकाल ही नहीं सके। यूं ही आग लगी, घर वालों को पता ही नहीं था आग लगी है, सब घर वाले भागे हैं बाहर। कोई मकामी जो इधर क्या नाम देते हैं, इधर साथ साथ आबादी भी नहीं है, ये देखें आप, अड़ोस पड़ोस के लोग भी नहीं है इधर। उस वजह से इनकी मदद करने के लिए उस टाइम कोई पहुँचे नहीं। बाद में आए हैं लोग फिर जब वो सब कुछ जल गया था, लेकिन जितना भी सामान था इनका सब सारे का सारा सामान जल के राख। ये चेक करें ढेर, राख के ढेर चेक करें आप भाई साहब। हम भी आए थे, काफ़ी दुख हुआ हमें, लेकिन ये तो जहाँ पे भाई साहब खुशियाँ होती हैं वहाँ पे गम भी होते हैं, तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा टाइम भी देखना होता है बंदे ने। बहरहाल क्या हो सकता है, ये देख के भाई साहब मेरा दिल बड़ा रंजीदा हुआ। अब कितनी सी जगह रहेगी, 3 मंजिला मकान ये है भाई साहब। देखें, कौन यकीन करेगा कि ये 3 मंजिला मकान है। एक आम आदमी की सारी जिंदगी की जमा पूंजी भाई साहब वो अपने घर पे लगाता है, और उसका घर उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाए, तो आप सोचें उस बंदे पे क्या गुजर रही होगी। ये जो बंदा आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये भाई साहब वही बंदा है जिसका घर जल के राख हुआ। सुनने में ये आया शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये घर जल के खाक हुआ। घर में जितना भी सामान था वो भी जलकर राख हो गया। मैं आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के पसमानदा इलाके में मौजूद हूँ, और इस जगह का नाम है तेजियाँ। सर्दी के मौसम में घर जलना, आगे स्नो फॉल का सीज़न है भाई साहब। स्नो में यहाँ के मकामी लोग अपना घर भी नहीं बना सकते। यहाँ के जिनका घर जला हुआ है, अब वो कहाँ जाएंगे। अब ये लोग खुले आसमान तले आ गए हैं। ये लोग बेयारो मददगार हैं। अगर आप में से कोई बंदा साहिब इस्तात रखता है तो इनकी मदद करें। आपकी मदद की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये इस सर्दी के मौसम में सर्वाइव कर सकें। आपके तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन लोगों को। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। आपसे जो हो सकता है इनकी मदद कीजिए। ये था मकान। अब यहाँ से चलते हैं। एजाज उठो निकलते हैं भाई। वो तो हो गया, तुम जहाँ जब से आए यहीं पे बैठे हो भाई। सर्दी लगती है, ऊपर कुछ पहनते ना, ठंड है जी। हाँ। बहरहाल एजाज मुकम्मल यहाँ पे था, इस आग पे बैठा हुआ। अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ वापस। स्पेशल ये देखने के लिए हम आए थे, वो तो हमने देख लिया। अब यहाँ से निकलते। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं है भाई। लोग अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो लोग जो आए थे, जो लकड़ियाँ वगैरह थी वो उन्होंने साइड करके रखी हुई हैं, तो भाई फिर चले गए हैं यहाँ से। एक बंदा है जो थोड़ा सा सामान जल के, लोहे की जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए एक बंदे को यहाँ पे रखा गया। ये जो भाई है यहाँ पे ना, जो बचा हुआ सामान है उसको लेके जाएंगे दूसरे घर। करीबी इनके कोई रिश्तेदार भी हैं इधर ऊपर इस घर में, तो इस घर में वो थोड़ा सा सामान बचा है उसको उधर लेके जाएंगे। बहरहाल अब होती है यहाँ से हमारी वापसी, तो चलते हैं वापस घर। जब से मैं नीलम वैली आया हूँ तब से भाई साहब खांसी मुकम्मल है, खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह की कसम से आपने भी मुझे अपनी आदत डाली, मुझे क्यों? भी साथ बीमार किया। क्यों, आपको क्या हुआ? हाँ बस हर वक्त मुझे भी आदत हो गई। एहसास क्यों हंस रहे हो? डार साहब अस्सलाम वालेकुम। डार साहब से तकरीबन डॉक्टर साहब क्या 5 माह बाद मुलाकात हो रही है। डार साहब कैसे हैं आप? आज आपकी आवाज़ स्लो, क्या अवस्था है? क्यों, क्या हुआ? कोई मुझे बुखार है, बस बुखार के जरिए से ओहो, खैरियत है, मुझे भी खांसी है, तो आज शुगल मेला तो हम नहीं लगा सकते। ठीक आज आप भी ठीक नहीं हैं, और दूसरा आपके गुमानियों का मकान भी नहीं, हमारा अपना पड़ोसियों का। पड़ोसियों का मकान जल के रास्ता हो गया। इस चीज पर मैं बड़ा मजबूर। अब ये लोग बेयार मददगार हैं, इनकी मदद करनी है। हम तक भी जो कि हम करेंगे। हमने खुद बताया, सुबह मैंने नेट पर बताया है कि हमारे साथ हमदर्दी को। और डार साहब इंशाल्लाह मैं भी आया हूँ, मैंने वीडियो में भी बोला है, इंशाल्लाह लोग मदद करेंगे बस शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह। और डार साहब, पहचान है इधर नीलम वैली की, आप बहुत बड़ा नाम है नीलम वैली। डार साहब फिर मिलेंगे। ये जो जितनी भी आवाम देखती है आपको ना, बहुत पसंद करती है आपको,
تو یہ آپ جو شگل میلہ لگاتے ہیں بہت لوگوں کو خوش کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے میرا, اللہ اپنے ہر ایک بچے کو اللہ اپنے سائے میں کے رکھنا. آمین آمین. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. ڈار صاحب پھر کبھی شگل میلہ لگاتے ہیں. اچھا بھائی صاحب, یہ بڑے فنی یہ گریٹ پرسنالٹی ہیں ہماری نیلم ویلی کی, لیکن ابھی تھوڑا سا وہ نہیں, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, موڈ ہوتا ہے. ابھی وہ موڈ نہیں ہے شگل میلے والا, ورنہ ان کے ساتھ شگل میلہ بھی لگاتے. خیر نیکسٹ لگائیں گے انشاءاللہ. بہرحال ابھی یہاں سے نکلتے ہیں. اعزاز ایک دفعہ اور مرغے کی آواز. جی مرغے کی آواز, جلدی جلدی جلدی. گاؤں کا بھائی صاحب, گاؤں میں یہی ہوتا ہے, اذان سے پہلے بھائی صاحب مرغے کی آواز نکلتی ہے ایسے ہی. میں نے جب اعزاز پہلے آوازیں نکالتا تھا, میں نے سوچا بھائی صاحب یہ کوئی مرغا آوازیں دے رہا ہے, لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا یہ تو اعزاز کی ریل آواز ہے. تو چلو بھائی اٹھو اٹھو, اس ٹھنڈے پانی سے دھو رہے ہو ہاتھ, اٹھو آؤ جلدی. کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ دھو رہا تھا وہاں پہ. کیا وہاں پہ وہ کالک لگی تھی؟ اوہو, یہ دیکھو شور لگا ہوا ہے, اور تم اس ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو رہے ہو, یا بیمار پڑ جاؤ گے. اب وہاں سے ہم آئے, یہ میرا گاؤں ہے تیجیاں, یہاں سے ہم آئے یہاں. اب پھر ڈسٹینس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنے دور سے ہم آئے. A few moments later. بھائی صاحب آپ کا بھائی واپس سے گھر پہنچ چکا ہے. مکان جل گیا تھا, جل کے راکھ ہوا ہے, وہ بڑا دکھ ہوا اس مکان کا, کیونکہ بھائی صاحب ایک بندہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اپنے گھر پہ لگاتا ہے, اور اس کا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے جب جل کر راکھ ہو جائے تو پھر اس بندے پہ کیا گزرے گی. بہرحال اللہ پاک اس کو جلدی سے ہمت دے تاکہ وہ نیا مکان بنا سکے. بہرحال آج کا ولاگ تو میں یہیں پہ, تو شام بھی ہو چکی ہے, تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں. تو اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال, تو مجھے دے تب تک کے لیے اجازت دو. اللہ حافظ.